Hello everyone and welcome back to another lecture of Power System 2 with AKTU code as KEE601. We are studying module number 2 of Power System 2, which is Load Flow Study. My name is Kitty Tripathi and I am faculty of Electrical Engineering Department, Babu Banarsi Das, Northern India Institute of Technology, Lucknow. So this is the summary or sum up lecture of load flow analysis, where we have already studied all the three methodologies of iteration methods which we are using for solving the load flow equations. We had n number of साइमल्टेनियस नॉन लीनियर इक्वेशंस और उन नॉन लीनियर इक्वेशंस को यूज़ करने के लिए हमने 3 मेथड्स यूज़ किए थे, गॉस सीडल, न्यूटन रैप्सन एंड फास्ट डिकपल्ड मेथड. ठीक है, अब हमने तीनों के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज भी प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर लिए कि विच वन इज बेस्ट सूटेड फॉर विच काइंड ऑफ कंडीशंस, राइट. Now let us begin with a given data and we will be solving how we can proceed for a Gauss-Seidel method. Although the entire solution, it is very tedious to do it manually because it takes, as we have discussed, it take a larger number of time in the convergence. While solving, I have used the MATLAB algorithm for solving the Gauss-Seidel so that we can directly achieve the where we have reached the convergence. We do not have to solve that n number of equations larger number of times in iteration, okay. But if you get these questions in any kind of subjective exam which we are facing, you will only have to appear it for 1 or 2 iteration as mentioned in the question, right. So here also majoritarily you receive 1 iteration. So here also I will be showing 1 iteration solving, and then I will also through MATLAB have received some answer which has been tabulated here. We can also indicate that as why we are receiving such a value and how much number of times it is going to take the convergence. So let us quickly see the question. Here what we have, 3 bus system, bus number 1, bus number 2, bus number 3. Okay. These two are the generator buses. We have the impedance data, the line between 1 and 2, 1 and 3, 2 and 3, and we have impedances following. Okay. The other thing which is given for the system is for bus number 1 we are saying this bus, we are saying that it is a slack bus, it is given in the question. This bus number 1 is a slack bus which has these values is given as 1.02 per unit. तो ये slack bus है, इसका value 1.20 है, ये initially से लेकर end तक हर iteration में slack bus का value तो वही रहने वाला because it is a reference bus. जो bus number 2 है उसके initial voltages की value given है 1.02 per unit. This is the initial value which is already been provided to us. And secondly the power, it is a PV bus, so the power is given as 50 megawatt. ये PV bus थी, ये भी PV bus है और ये PQ bus है as indicated in the figure. ठीक है, तो PV bus में P का value given है और V का value given है, और जो third bus हमारी PQ bus थी तो P और Q का value given है. What we have to do, we are given a tolerance which will be helpful for determining the convergence. It is set as 0.1. We have also known what is the base MVA for the system. Now let us proceed. How are we going to solve it? First things first. सबसे पहला काम है, हमारे पास डायग्राम अवेलेबल है, सारे एडमिटेंस इम्पिडेंसेस की वैल्यू गिवन है. ठीक है, द फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट इज 1 से 2 के बीच में, जो 1 से 2 के बीच में इम्पिडेंस था, जो 2 से 3 के बीच में इम्पिडेंस था, जो 3 से 1 के बीच में इम्पिडेंस था 0.02 प्लस j 0.04. इसको हम एडमिटेंस में कन्वर्ट कर देंगे. व्हेन वी कन्वर्ट इट इज गोइंग टू कम एज 10 माइनस 10 प्लस 20j. नो, इट इज माइनस बिकॉज दिस इज r प्लस jx, इट विल बी r माइनस jx. यही सेम डेटा मेरे ख्याल से इस बस में भी गिवन था एज इन द क्वेश्चन. हियर इट विल बी 10 माइनस 20j अगेन. ठीक है, अब बचता है बस नंबर 2 जिसका डेटा गिवन था क्वेश्चन में 0.02 प्लस j 0.06. व्हेन वी कन्वर्ट इट इनटू एडमिटेंस वी विल गेट 5 माइनस 15j. इट इज वेरी इजी फॉर अस टू कैलकुलेट, राइट. हमें इम्पिडेंस पता हो तो एडमिटेंस मैट्रिक्स हम निकाल सकते हैं बहुत इजीली. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस इन दी इनिशियल लेक्चर्स ऑफ द लोड फ्लो एनालिसिस. ठीक है, हमें वाई बस मिल गया. अब देखिए यहाँ पर हमारे ये सारे कनेक्शंस की वैल्यू गिवन है. अब हमें y11 निकालना हो तो वी कैन डिफाइन इट एज y12 प्लस y13, तो हमें y11 मिल जाएगा. सिमिलरली y12
डायरेक्टली वी कैन यूज माइनस ऑफ दिस वैल्यू विच इज गिवन, सो माइनस ऑफ 10, माइनस की जगह फिर प्लस हो जाएगा प्लस 20j। y13 में क्या है, 1 से 3 के बीच जो वैल्यू है वो निकल आई, विच इज माइनस ऑफ 5 और माइनस माइनस प्लस इज 15j। सिमिलरली बस नंबर 2 के लिए, बस नंबर 3 के लिए हम लोगों ने एडमिटेंस निकाल लिया। अब फर्स्ट स्टेप क्या था हमारे एल्गोरिथम का, इनिशियल गेस लेना या इनिशियलाइजेशन करना। ठीक है, हमारे पास 3 बस हैं, तो जो हमारा इनिशियल वोल्टेज का जो वेक्टर होगा वो 3 टर्म्स होंगे उसमें, V1, V2 एंड V3। V1 वॉज अ स्लैक बस, तो स्लैक बस का वोल्टेज तो 1.02 है, ये इंटायर द सिस्टम 1.02 रहने वाला है। V2 के लिए क्वेश्चन में ऑलरेडी क्योंकि वो PV बस था, उसका वोल्टेज इनिशियली गिवन था 1.02। V3 हमें नहीं पता बिकॉज वो PQ बस थी, तो इनिशियल गैस हमने लिया है 1 पर यूनिट। ठीक है, सिमिलरली लोड एंगल का भी इनिशियल गैस लेते हैं, तो लेट अस टेक एन इनिशियल गैस दैट वेयर लोड एंगल इज 0 फॉर द इंटायर केस। नाउ अगर हमें इटरेशन में हमें सॉल्व करना है तो हमें करना क्या है, देखो यहाँ पे ये वो वाला केस हो गया जहां पर ये PV बस है, PQ बस है और रेफरेंस या स्लैक बस है, ये 3 चीजें हैं। ठीक है, PV बस कौन सी थी हमारी, बस नंबर 2, बस नंबर 3 PQ थी और रेफरेंस बस बस नंबर 1 थी। हमारा प्रोसीजर क्या कहता है, जो PV बस में हमें क्या कैलकुलेट करना है, Q और डेल। सिमिलरली PQ बस में क्या कैलकुलेट करना है, V और डेल। उसके बाद कब तक करते चले जाना है, एक इटरेशन में किया, दूसरा इटरेशन, तीसरा इटरेशन, चौथा इटरेशन, कब तक करते चले जाएंगे, जब तक हमको कन्वर्जेंस नहीं मिल जाता। कन्वर्जेंस के लिए क्या बोल रहे हैं, द सक्सेसिव 2 इटरेशंस के बीच में जो वैल्यूज हैं उनका डिफरेंस, कन्वर्जेंस जो हम लोगों ने 0.1 इस क्वेश्चन में हमें गिवन डेटा की तरह मिला है, वो वैल्यू आनी चाहिए। अगर नहीं आ रही तो वी विल बी कंटिन्यू डूइंग इट फॉर व्हेन अनटिल एंड अनलेस जो बस नंबर 2 और 3 है दोनों के लिए ही वो कन्वर्ज नहीं हो जाता। जैसे ही कन्वर्ज हो गया, व्हाट वी विल डू, वी विल डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ पावर फ्लो फ्रॉम दी स्लैक बस, दैट इज स्लैक बस का पावर भी डिटरमाइन किया जाएगा। लेट्स नाउ क्विकली जंप इनटू कि हम कैसे कैलकुलेट करते हैं बस नंबर 2 के लिए। अब बस नंबर 2 के लिए हमारे पास जो इक्वेशन है वो क्या है, वोल्टेजेस की इक्वेशन हमें पहले से ही पता है कैसे इक्वेशन हुआ करती थी, तो वोल्टेजेस की और बस नंबर 2 का वोल्टेज हमें पहले से पता है। हमें बस नंबर 2 जो हमने एक्सप्रेशन लिखा था वहां पावर को हम लोग लिख रहे थे, पावर का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू VI स्टार इंटू समेशन ऑफ VJ इंटू YIJ, कुछ उसी फॉर्मेट को यहाँ पर यूज करेंगे। ठीक है, सेकेंड बस के लिए ये काम करते जाएंगे जब तक हमें कन्वर्जेंस नहीं मिल गया। तो लेट अस सी, अभी सेकेंड बस हमारा PV बस था, हम यहाँ पर क्या निकालने की कोशिश करेंगे, Q और लोड एंगल का इनिशियल गैस 0 लिया हुआ है, तो लेट अस बिफोर फाइंडिंग आउट लोड एंगल लेट अस कैलकुलेट Q। अब हमें ये इक्वेशन पता थी कि PI माइनस JQI, ये जो एक्सप्रेशन हुआ करता था इसको हम लोग क्या लिख रहे थे, VI स्टार इंटू समेशन ऑफ VJ इंटू YIJ, J इज इक्वल टू 1 से n। ठीक है, ऐसा ही कुछ था जो गॉस सीडल मेथड का जो हम बेसिक एक्सप्रेशन यूटिलाइज कर रहे थे, जो जहां से हमने डेरिवेशन शुरू किया था। ठीक है, अब अगर हम वोल्टेजेस वहां तो निकाल रहे थे जब हम PV बस एग्जिस्ट नहीं कर रहे थे, उस केस में सॉल्व किया था, तो एग्जिस्ट कर रहे थे तो बोला था हमें सीधे Q निकालना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमें सीधे Q निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस एक्सप्रेशन को अगर हम गौर से देखें तो ये इसका इमेजिनरी पार्ट अगर हम सॉल्व कर लें तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें Q मिल जाना चाहिए, दैट इज व्हाट आई हैव रिटन हियर। क्योंकि P माइनस JQ है इसलिए वी हैव रिटन हियर माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ उस एक्सप्रेशन को हम लोगों ने एक्सपैंड कर दिया है। कैसे, सेकेंड और थर्ड J इज इक्वल टू 1 से अब n की वैल्यू क्या हो गई, n इज इक्वल टू 3 हियर। ठीक है, सो वी विल बी यूजिंग V1, V2, V3, वी आर यूजिंग इट फॉर सेकेंड बस इसलिए V2। ठीक है, दिस J इज I इज 2, V2। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, I की वैल्यू पे 2, तो V2 का स्टार इंटू when now this value is going to be varying from 1 to 3,
तो V1 V2 स्टार इंटू V1 इंटू Y12 and similarly the Y2 V2 into V2 star into Y22 and V2 star into V3 into Y23. This is what the equation will begin as. तो इसमें हमारे पास अब बात आती है कि हम लोग वैल्यू क्या रखेंगे. तो बिकॉज इट इज द फर्स्ट स्टेप वी विल बी सब्स्टिट्यूटिंग ऑल द वैल्यूज ऑफ V2 V3 एज अ इनिशियल गेस व्हाट वी हैव टेकन और व्हाट वाज गिवन टू अस. तो यहाँ पर जो V2 है 1.06 इनिशियल गैस में दिया हुआ है वो यूज़ करेंगे. V1 की वैल्यू स्लैक बस है 1.06 है, वो फिक्स रहने वाली है. ठीक है, देख रहे हैं आप यहाँ पर R बस सिस्टम में R+1 इटरेशन के लिए, क्योंकि ये पहला ही इटरेशन है तो ये R की वैल्यू 0 हो गई, ये पहला इटरेशन है तो ये कौन सी वैल्यू आ रही है V1 में 0, V2 की वैल्यू 0th के लिए यानी इनिशियल कंडीशन के लिए. तो और जो रेफरेंस बस है वो तो सेम ही रहने वाली, तो V1 का टेंशन हमको है नहीं. सिमिलरली V3 की वैल्यू गिवन नहीं थी पर इनिशियल गेस में हम लोगों ने क्या लिया था 1. रह गई बात Y की, तो एडमिटेंस मैट्रिक्स हमको पता है, वी कैन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू एंड डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ Q2 हियर. जैसे ही Q2 मिल गया, हमें क्या चाहिए अब लोड एंगल. लोड एंगल क्या है, वोल्टेज का एंगल. किसका लोड एंगल निकाल रहे हैं हम, बस नंबर 2 का. तो लोड एंगल का एक्सप्रेशन क्या जाएगा, बस नंबर 2 का एंगल. अब V को हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, पावर अपॉन एडमिटेंस बस नंबर 2 के लिए, सिर्फ बस नंबर 2 की बात हो रही है. तो पावर ऑफ 2 माइनस जे ऑफ Q2 डिवाइड बाई Y22. अब Q2 करंट अभी जो हमने वैल्यू निकाली है, यही तो बोलते हैं ना सक्सेसिव डिस्प्लेसमेंट. ये जो वैल्यू निकाली है 2 के लिए अभी डायरेक्टली वही यूज कर देंगे. P की वैल्यू इनिशियल जो वैल्यू है PV बस में, P का वैल्यू जो इनिशियल है वो यूटिलाइज कर रहे हैं. ठीक है, क्या मिल जाएगा हमको, एंगल. पहली बस का कैलकुलेशन हो गया, बस नंबर 1 तो रेफरेंस थी, नो कैलकुलेशन इज रिक्वायर्ड देयर. बस नंबर 2 का कैलकुलेशन हो गया. व्हाट अबाउट बस नंबर 3. बस नंबर 3 कैसी बस थी, PQ बस थी, लोड बस थी. PQ बस है तो क्या निकालना है इसके लिए हमको, वोल्टेज और लोड एंगल अगेन. ठीक है, इनिशियल गेस में लोड एंगल का वैल्यू 0 है. अब लोड एंगल के वैल्यूज के लिए वोल्टेज यहाँ निकालना है, तो वोल्टेज का तो इसी तरह का एक्सप्रेशन जो हम लोगों ने यूज किया था वही डायरेक्ट यूज कर लेंगे. V3 को क्या लिख सकते हैं, जो एक्सप्रेशन आया था 1/y था ना, 1/y33 P3 माइनस JQ3, यही एक्सप्रेशन आया था हम लोगों को सॉल्व करने में. V3 स्टार माइनस समेशन ऑफ I इज इक्वल टू 1 to n, और वी कैन डायरेक्टली यूटिलाइज दी समेशन का वैल्यू I नॉट इक्वल टू j, क्योंकि वो सेपरेट कर लिया था टर्म I इक्वल टू j वाला. तो डायरेक्टली अगर लिखें तो क्या हो जाएगा, Y31 इंटू V1, ब्रैकेट में दूसरा टर्म है, ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट यूज ही नहीं कर रहे तो अगले टर्म के साथ हम लोग डायरेक्टली माइनस लिख दे रहे हैं. ठीक है, माइनस Y32 इंटू V2. अब इसमें हमारे पास सारी वैल्यूज हैं. अब यहाँ पर एक चीज़ और यहाँ सोचने वाली है कि जब हम यहाँ V2 लेंगे तो इसी स्टेप का लेंगे, क्योंकि इसी स्टेप में प्रीवियस, इसी इटरेशन काउंट में ही प्रीवियस स्टेप में हमने V2 निकाल लिया है. और रह गई बात V1 की, तो V1 को तो चेंज होना नहीं है क्योंकि वो स्लैक बस है. ठीक है, रह गई बात V3 स्टार की, क्योंकि V3 स्टार तो अभी कैलकुलेट हुआ नहीं था. सो व्हाट कैन वी डू हियर, इनिशियल गैस की वैल्यू, यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, फर्स्ट इटरेशन में V3. अब हम क्या करेंगे, नाउ वी विल टेक द डिफरेंस. कैसे, फर्स्ट स्टेप के V3 का माइनस जो हमने इनिशियल गैस लिया उसका. सिमिलरली वोल्टेजेस में भी ये काम होता है. अगर ये कन्वर्ज कर गया तब तो ठीक है, यानी 0.1 का डिफरेंस आ गया, स्टॉपिंग क्राइटेरिया जो भी क्वेश्चन में गिवन था वो आ गया तो ठीक, नहीं तो वी विल हैव टू रीसॉल्व इट अगेन. अगर मान लेते हैं आ जाए, मान लेते हैं आ गया कन्वर्जेंस, व्हाट वी विल हैव टू डू नेक्स्ट, वी विल हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ पावर इन दी स्लैक बस. स्लैक बस कौन सी थी हमारी, बस नंबर 1. उसके लिए पावर क्या लिख सकते हैं, P माइनस JQ. उसको क्या लिख सकते हैं, VI स्टार, क्योंकि तो 1 है तो V1 स्टार इंटू समेशन ऑफ वही लिखा, देखिए Y11, Y12, Y13, क्योंकि 3 बस सिस्टम थी, इंटू V1, V2, V3. सारी वैल्यूज Y12, Y11 और Y13 ये वैल्यूज तो हमारे पास ऑलरेडी हैं मैट्रिक्स से. V1, V2, V3 जो है हमारी, जो कन्वर्ज होने के बाद जो लास्ट स्टेप पे वोल्टेज जिसका वैल्यू निकला था वो वैल्यू रख देंगे.
हमको क्या मिल जाएगा, पावर। ठीक है, इस तरह से किसी भी nth बस के लिए, किसी भी kth बस के लिए पावर निकालें तो डायरेक्टली हम ये फॉर्मूला यूटिलाइज कर सकते हैं, या यही काम तो कर रहे हैं बेसिकली, पावर की वैल्यू डिटरमाइन करना। तो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन फाइंड द वैल्यूज ऑफ पावर और वट एवर वी वॉन्ट, एंड हाउ एवर लॉसेज अगर हमें कैलकुलेट करना है तो वो भी इसके फर्दर ऑन किया जा सकता है। ये सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में, जो भी जानकारी हमें चाहिए वो डिड्यूस करने की। अब बात आता है कितने स्टेप के बाद प्रोसीजर हो रहा है, तो हम ये सॉल्व करते जाएंगे। देखो यहाँ पर हमने क्या किया हुआ है, n नंबर ऑफ स्टेप्स खाली एक इंडिकेशन के लिए दिया है। V1 हमारा रेफरेंस था, बस था, उसका लोड एंगल रेफरेंस था। तो सी ये हमने क्या किया, ये मैटलैब से चेक करने की कोशिश किया, तो इट हैज़ बीन कमिंग एज इट इज़ कन्वर्जिंग इन द 11th स्टेप। सो कंप्यूटेशनल मेथड से ही ये इजीली सॉल्व होता है। देयर आर गुड नंबर ऑफ एल्गोरिदम्स विच इज़ इजीली अवेलेबल, यू कैन ट्राई बाय योरसेल्फ एंड डिटरमाइन दिस वैल्यू। कैलकुलेशन से तो दिख गया, यहाँ पर क्या दिख रहा है हमारा वैल्यू कि 11th पर भी V1 क्योंकि स्लैक है, ना तो उसका वोल्टेज बदलेगा ना तो लोड एंगल बदलेगा। V2 की बात करें तो क्योंकि इट इज PV बस, वोल्टेज इज ऑलरेडी स्पेसिफाइड हियर, इट इज नॉट गोइंग टू चेंज, डेल इज गोइंग टू चेंज अगेन एंड अगेन, इट इज चेंजिंग इन n number of times until and unless what we have done is we have received the convergence। ठीक है, कन्वर्ज करना ही किसको था, V3 को। तो V3 की फर्स्ट स्टेप में वैल्यू इतनी आई, सेकंड में इतनी, थर्ड में इतनी, देख रहे हैं आप करते 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 जब हमारा 10 की पावर -2 और 3 वट एवर द कन्वर्जेंस वॉज हैज नॉट बीन अचीव्ड, वी आर सॉल्विंग इट टिल द वैल्यू ऑफ 11th इटरेशन। V और डेल्टा निकाल लेंगे। 11th इटरेशन के बाद वी आर सीइंग कि इनके बीच का डिफरेंस जो है वो कन्वर्जेंस के वैल्यू के बराबर आ गया है। सो वी हैव स्टॉप्ड हियर। दिस इज हाउ वी सॉल्व अ गॉस-सीडल मेथड। ओके, नाउ लेट अस क्विकली जंप ऑन टू another question, Newton-Raphson. See, the procedure of the solving of Newton-Raphson and fast decoupled method is exactly the same. We have to determine the Jacobian method. Problem here is in the Newton-Raphson it is more complex and tedious because we have to calculate all the 4 Jacobian matrices. और गॉस फास्ट डिकपल्ड में तो आसानी है, एक निकाल लेंगे, H और L का तो अपने आप ही निकल आएगा क्योंकि दे आर हैविंग दी सिमिलर वैल्यूज, सो वी कैन डायरेक्टली यूज इट। सो लेट अस दिस example can be considered as an example for fast decoupled also because the procedure is going to be same. There we will be using less computational energy. Here we are taking larger number of energy because we have to calculate all the 4 Jacobian matrix. Now let's quickly see the data of this example. Here what are we seeing? 3 bus system. Actually we are for the simplicity or for the sake of showing you how fast things work, I have taken the same example what we have done in the Gauss-Seidel method only. It will help me also to do calculation quickly here. ठीक है? So the same scenario here, we have line impedances data. What can we do here? Y bus can be determined using it. The data of the question of value is same as that of the previous question what we have done just now. ठीक है? In the previous question what we have done just now, we had 3 buses. Here also we are same question because we are taking it is 3 bus. First bus is a slack bus, second bus is PV bus and third bus is PQ bus. ठीक है, अब PV बस है तो वोल्टेज ऑलरेडी गिवन होगा। 3 के लिए इनिशियलाइज करने को बोला है, rather than a flat start use the initialization voltage for V3 as 1.032 rather than taking it as a flat start. ठीक है, and lastly एंगल इनिशियलाइज टू 0, मतलब लोड एंगल को जो इनिशियल गैस लेना है वो 0 लेना है। अब क्या करें, वाई बस निकाल लें। सेम ही आया है 15 - 35J - 10 + 20J एंड सो ऑन। ये Y11, Y12, Y13, Y21, Y22, Y23, Y33, Y31 एंड Y32। ठीक है, इनिशियल गैस लेने के लिए क्या बोला है, V3 बस के लिए 1.02 एंड कंसिडर द लोड एंगल एज 0। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, हमको करेक्शन मैट्रिक्स की वैल्यू निकालनी होती है। क्या निकालेंगे, डेल P और डेल Q। डेल P और डेल Q का एक्सप्रेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो P Y माइनस फंक्शन लिख रहे थे ना, जो मैट्रिक्स बनाया था हम लोगों ने, जो करेक्शन मैट्रिक्स बनी थी
उसके बाद हम जो y माइनस क्या लिख रहे थे, फंक्शन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन x1 टू xn, सिमिलरली y2 माइनस फंक्शन ऑफ x1 से xn, सो एंड सो ऑन. तो what this is what we are trying to write here. Why? Because we need to find out the value of correction matrix, right? So see first, correction के लिए initially क्या लेंगे, p first value which is the specified here, तो p1 minus दिस फंक्शन वैल्यू, और ये फंक्शन की वैल्यू क्या आई है, वो वही आई है जो हम लोगों ने कैलकुलेशन से यहाँ निकाली थी, वी आई समेशन वी जे इंटू जी ऑफ आई जे कॉस डेल आई प्लस बी ऑफ आई जे साइन ऑफ डेल आई. ठीक है, आई एम राइटिंग इट अगेन हियर. डेल पी आई को वी कैन राइट इट एज पी आई विच वॉज ऑलरेडी गिवन इन द इनिशियल गैस और विद द सिस्टम डेटा, माइनस या y1 की वैल्यू है ये, summation j is equal to 1 से 3 because it is a 3 bus system, we will write as vj for iterations, and yj को हम लोग लिख रहे थे ना vij cos of del ij, g और y के लिए याद रख लें g माइनस जे बी वाई है. ठीक है, तो यहाँ पर g ऑफ आई जे इंटू कॉस डेल आई हो गया प्लस b ऑफ आई जे इंटू साइन डेल आई जे. ये एक्सप्रेशन हमारे पास हो गया. इससे क्या कर सकते हैं हम लोग, डेल p निकाल सकते हैं. सिमिलरली रिएक्टिव पावर के लिए डेल q निकालें किसी ith बस के लिए, तो वो क्या लिख सकते हैं, वो भी फंक्शन आएगा y माइनस फंक्शन ऑफ द वैल्यू विच वी आर कैलकुलेटिंग. ठीक है, तो इसको q ऑफ i स्पेसिफाइड माइनस समेशन ऑफ j is equal to 1 से 3 because it is a 3 bus system. Here again vj, here what we can write as g ij, यहाँ cos था यहाँ sin हो जाएगा, sin of del ij. ठीक है, यहाँ sin था माइनस ऑफ b ij इंटू cos del ij. ठीक है, यही एक्सप्रेशन था हमारे पास डेल q के लिए. तो हमारे पास इनिशियल जो वैल्यूज़ हैं उनको सब्स्टिट्यूट करने पर हमें क्या मिल जाएगा, ये वैल्यूज़ मिल जाएंगी. अब अगला काम क्या है हमारे पास, जैकोबियन मैट्रिक्स निकालना. जैकोबियन मैट्रिक्स निकालने के लिए डेल p बाई डेल q, हमारे पास जब एक्सप्रेशन है तो हम जैकोबियन मैट्रिक्स का टर्म निकाल लेंगे. कैसे, लेट्स सी हियर, क्या क्या वैल्यूज़ हमें निकालनी है. तो हमें these are the values which we have to calculate here. See, first things first, J निकालते समय हमारे पास जो J1, J2, J3, J4 है उनकी वैल्यूज़ निकालनी है. क्योंकि स्लैक बस है उसको यूज़ नहीं कर रहे हम, क्योंकि वो तो फिक्स्ड ही है. बच गया क्या, बस नंबर 2 और बस नंबर 3. बस नंबर 2 के लिए जब H मैट्रिक्स निकाल रहे हैं तो ये क्या जाएगा, H 2 टर्म आएंगे, H22, H23, और बस नंबर 3 के लिए निकालेंगे तो H32 इंटू H33. ठीक है, ये चेंज इन लोड एंगल विथ रेस्पेक्ट टू, मतलब चेंज इन डेल पी विथ रेस्पेक्ट टू लोड एंगल. ठीक है, नेक्स्ट क्या है, 2 2 और 3 3. क्यों, क्योंकि डेल v के साथ नाउ वी आर गोइंग टू डिफरेंशिएट ना, तो n का 2 ही टर्म आएगा. 2 बस के लिए तो 2 3, 3 बस के लिए 3 3. सिमिलरली रिएक्टिव पावर के लिए 2 ही टर्म आएंगे. रिएक्टिव पावर का डिफरेंशिएशन फॉर दी बस नंबर 2, रिएक्टिव पावर का डिफरेंशिएशन फॉर दी बस नंबर 3, एंड हियर वोल्टेज विथ नंबर 2 बस नंबर 3. इन एलिमेंट्स का डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं जो हमने डिराइव किया हुआ था. डेल पी और डेल क्यू से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके भी निकाल के डिफरेंशिएट कर देंगे तो भी वैल्यूज़ हमें यहाँ मिल जाएंगी. व्हाट वी विल गेट इज हियर इज दीज वैल्यूज़ विच वी कैन डायरेक्टली पुट इन द फॉर्मूला. प्रॉब्लम हियर इज नॉट दिस, प्रॉब्लम इज इसके बाद क्या होगा, व्हाट नेक्स्ट. सो सी हियर, अब हमारे पास क्या मिल गया है, करेक्शन वैल्यूज़. इन जैकोबियन का मिल जाने का मतलब हमें माइनस वैल्यू मिल गई हमें, क्योंकि प्रीवियस स्पेसिफाइड वैल्यू पता थी, बाद वाली वैल्यू मिल गई हमें. क्या मिल गया, करेक्शन मिल गया. तो करेक्शन वेक्टर्स हमें मिल गया डेल्टा डेल लोड एंगल 2 बस का, लोड एंगल 3 बस का, और चेंज इन वोल्टेज बस नंबर 3 का. बस नंबर 2 में चेंज इन वोल्टेज क्यों नहीं लिखा है हमने, क्योंकि वो ऑलरेडी पीवी बस है. ठीक है, तो पीक्यू बस तो एक ही है ना, इसलिए यहाँ भी L33 है केवल. ठीक है, सो व्हाट वी आर डूइंग हियर, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज विच वी हैव ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कैलकुलेशन हियर. नाउ वोल्टेजेस की वैल्यू हमारे पास इनिशियली है, लोड एंगल की वैल्यू हमको मिल गई. अब हम कैलकुलेशन पर आएंगे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, P2 का कैलकुलेशन क्या है, द वैल्यूज विच वी हैव ऑब्टेन्ड
ठीक है. हाउ? बाय सब्ट्रैक्टिंग इट फ्रॉम द स्पेसिफाइड वैल्यू माइनस व्हाट वी हैव कैलकुलेटेड अबव हियर. तो स्पेसिफाइड क्या थी? 0.5 -1 और -0.6. इन वैल्यूज को यूज करा और माइनस क्या किया जो कैलकुलेशन से अभी निकली है. कितनी निकल के आई है? 0.4958. हियर वी हैव रिटन कैलकुलेटेड वैल्यूज का ये 3 वैल्यू है. ये जो कैलकुलेट करके आई है वो वैल्यूज हमने यहाँ रख दी. हमको क्या मिल गया? डिफरेंस मिल गया. यही ही हमारी क्या होती है? करेक्शन मैट्रिक्स. करेक्शन मैट्रिक्स का आंसर मिल गया. अब हम यही चेक करते हैं कि कन्वर्जेंस है या कन्वर्जेंस नहीं है. तो सॉल्विंग इट फॉर n नंबर ऑफ इटरेशंस we find out that it is not converging for a very longer period of time. If it would have converged here, then we would have determined the final values of voltage, active power, reactive power, wherever we want to deduce whatever we want. ठीक है. हाँ, लोड एंगल की कैलकुलेशन की बात भी कर लेते हैं. लोड एंगल को हम लोग जब यूज़ करते हैं डेल, तो हम लोग किसका एंगल निकालने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर? अगर मान लीजिए P2 के लिए निकालना है तो P2 माइनस JQ2, ये हमने पावर के एक्सप्रेशन में लिखा है, अपॉन वी कैन राइट इट एज Y22 इंटू V2. This we have using the equation and again n number of times for the same calculation again and again. ठीक है. माइनस B12 इंटू V1. V1 for which? First iteration. ठीक है, बिकॉज वी हैव ऑब्टेन्ड दैट वैल्यू फ्रॉम नाउ. ठीक है. माइनस B23 V2 फॉर फर्स्ट इटरेशन. वी कैन यूज दिस टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ डेल. राइट. ठीक है. हमने लास्टली क्या किया है? मिसमैच वेक्टर निकाल लिया है. दिस मिसमैच वेक्टर इज ओनली कंपेयर्ड फॉर कन्वर्जेंस. अगर ये कन्वर्जेंस का पैरामीटर है तो ये कन्वर्ज हो गया है, नहीं है तो यहाँ से जो हमने V1 और P और Q यूज किया है, इंस्टेड ऑफ इनिशियल गेस दिस वैल्यू विल बी यूज फॉर द सेकेंड इटरेशन. जैसे ये जो हमने इनिशियल वैल्यूज ले ली है, ये लोड एंगल की जो हमने यहाँ पर अभी हम क्या करेंगे? हम कैलकुलेटेड वैल्यू यूज करेंगे फर्स्ट इटरेशन की इन द सेकेंड इटरेशन. एंड अगेन वी विल कैलकुलेट दिस मिसमैच वेक्टर. हम जेकोबियन निकालने के बाद लोड एंगल यूज कर रहे हैं, निकाल के हमें फिर मिसमैच वेक्टर निकालेंगे, फिर ये वैल्यूज को देखेंगे, फिर ये कन्वर्ज नहीं हुई तो फिर वी विल बी प्रोसीडिंग टू नंबर 3 एंड सो ऑन. वी कैन फाइंड इट आउट व्हेनेवर इट इज गोइंग टू कन्वर्ज. दिस इज नॉट कन्वर्जिंग इन दिस स्टेप. आई एम जस्ट शोइंग हियर द रिजल्ट. ठीक है. इफ यू हैव टू डिटरमाइन द कन्वर्जेंस, इट इज मच इजियर फॉर you to solve some computational algorithm, use some computational algorithm and solve it. It is much easier to use rather than doing it manually. ठीक है. In case if you have been asked manually, it is not going to exceed for more than 1 or 2 iterations. I hope it has been cleared. हाँ, अगर न्यूटन रैप्सन के बजाय यही फास्ट डिकपल्ड मेथड होता तो we would have been solving it with a much easier lesser number of effect. हमें यहाँ मिसमैच वेक्टर निकालने की ज़रूरत नहीं थी. हमें केवल ये जेकोबियन वेक्टर मतलब मिसमैच वेक्टर निकालने के लिए इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ रही थी. हमें केवल जेकोबियन वेक्टर्स में हमारे पास सिंप्लीफिकेशन हो गया ना. यहाँ पर दिस टर्म वी वुड नॉट हैव टू कैलकुलेट, दिस टर्म वी वुड नॉट हैव टू कैलकुलेट, ओनली दिस एंड दिस, दैट टू द डायगोनल एलिमेंट्स एंड ऑफ डायगोनल एलिमेंट वैल्यूज आर कमिंग सेम. So only 2 values we have to calculate, and again we will be using, we can formulate both H and L vector and can simply solve it. That's it for this unit. I hope you have understood the significance of load flow analysis and have understood for which kind of system which method is most preferable. Obviously Gauss-Seidel method is the most popular one, but it has its own limitations, for which we used Newton-Raphson method. Newton-Raphson के भी अपने limitations हैं because of the high computational time and energy which is consumed there, large number of storage variables which are used there. So again we are preferring the fast decoupled method. So whatever the situation is, we can use it accordingly. For a larger number of system, it is preferred to be larger number of elements in the system, or a big system we prefer using fast decoupled load flow analysis. I hope you must have been cleared. Now you can practice all the questions for the load flow analysis in a similar manner. Thank you. In the next lecture, we will be discussing next module.